اس ناول کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ ذہین اور ہوشیار ہونے کے علاوہ میرا ذہن شاطر بھی بہت تھا۔ کالج میں کسی لڑکی سے نوٹس نکلوانے ہوتے، کسی سے ریفرنس بک کی ضرورت ہوتی، گھر میں بھی والدین سے کوئی فرمائش پوری کروانی ہوتی یا بھائیوں سے کوئی کام کروانا ہوتا، تو میں چند اچھی باتیں کر کے سامنے والے کو پھسلا لیتی۔ اگلا تو چت ہو جاتا کہ آج انیکا احمد ہماری طرح متوجہ ہے۔ جو ہی میرا کام نکل جاتا میں اچانک اتنی روکھی اور مغرور ہو جاتی کہ کبھی کبھی تو سامنے والا دکھ اور صدمے سے بھونچکا ہی رہ جاتا۔ وہ میری برداشت کا کھلا امتحان تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میری 22 سالہ زندگی میں کسی کی اتنی مجال نہیں ہوئی تھی کہ مجھ سے یوں بڑھ بڑھ کر بات کرے اور میری بدتمیزی کے آگے ٹھہرا بھی رہے۔ اچھا بس دفعہ ہو، اپنا راستہ ناپیں، منہ اٹھائے چلے آتے ہیں۔ بس گالیاں دینے کی کسر تھی، ورنہ میں اس کو سب سنا ڈالتی۔ بی بی انیکا، میں تو بہت دنوں سے آپ کی کھوج میں لگا ہوا تھا۔ کیا کیا نہ لوگوں سے آپ کے قصیدے سنے تھے۔ میں بھی سوچتا تھا کہ دیکھوں تو صحیح کہ اس بجتے ہوئے ڈھول کی اندر سے کیا حقیقت ہے۔ آپ نے تو پہلی بار میں ہی مجھے مایوس کر دیا۔ السلام علیکم۔ آج ایک بہت ہی خوبصورت سا ناولٹ آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، جس کا نام ہے دعا، محبت اور عبادت۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تو چلیے پھر آغاز کرتے ہیں۔ سردی کی طویل لمبی رات تھی۔ میں نے اپنا کام ختم کر کے گھڑی دیکھی، رات کا 1 بج رہا تھا۔ اوف، ابھی 1 ہی بجا ہے۔ میں منہ میں بڑبڑایا، تف ہے میری بے وقوفی پر۔ لوگ اس ٹھنڈی رات میں مزے سے بستر میں پڑے لحاف تانے میٹھی نیند کا مزہ لے رہے ہوں گے، اور میں کہہ رہا ہوں ابھی 1 ہی بجا ہے، جبکہ رات کا ایک حصہ تو ختم بھی ہو چکا۔ دن اتنے چھوٹے تھے کہ شام 6 بجے سے اندھیرا چھا جایا کرتا تھا۔ میں نے اکثر لوگوں سے سنا تھا کہ سردیوں میں نیند بہت اچھی آتی ہے، لیکن جسے نیند ہی نہ آتی ہو اس کے لیے کیا اچھی اور کیا بری۔ میں کمرے سے نکل کر باہر صحن میں آیا۔ اسد، تہجد کی نماز پڑھ لو۔ دائیں طرف سے پاپا کی آواز آئی۔ جی پاپا، میں نے سستی سے جواب دیا۔ اتنی سردی میں کھلے آسمان تلے میں آدھا پون گھنٹہ ٹہلنے کا ارادہ تو ضرور رکھتا تھا، لیکن کم سے کم 4 رکعت تہجد مجھ سے ادا ہونے والی نہ تھی۔ میں جب 12 سال کا تھا تب ہی سے فرض نماز کو پاپا زبردستی مجھ سے پڑھوایا کرتے تھے، اور میں بھی کسی نہ کسی طرح 5 وقت کی نماز پڑھ ہی لیا کرتا۔ لیکن جب سے 17-18 سال کا ہوا تھا، پاپا نے مجھے تہجد کے لیے ٹوکنا شروع کر دیا تھا۔ کبھی کبھی تو گہری نیند سے اٹھا دیا کرتے۔ میں چڑھتا، بکتا جھکتا، کبھی کبھی ہی تہجد پڑھ سکتا، اکثر انہیں جواب نہ دیتا، لیکن آج بھی 24 سال کا ہو چکا تھا۔ پاپا نے مجھے کہنا نہ چھوڑا۔ میں کبھی کبھی تو غصے میں سوچتا، جوانی میں تہجد کون پڑھا کرتا ہے، پھر توبہ بھی کر لیتا، شیطان دامن نہ چھوڑتا۔ جب سردی سے ٹانگیں اکڑنے لگی تو اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ تہجد پڑھے بغیر نہ سونا، 5 منٹ کا کام ہے۔ پاپا نے پھر یاد دلایا۔ اوف پاپا، آپ کیوں ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ سو جائیں نا، میں نے بیزاری سے کہا۔ مہینے کے آخری دن ہیں، دکان اور گودام کا حساب بہت ہے، بس کام نمٹا کر ہی سوؤں گا، انہوں نے جواب دیا تو میں جھنجلاتے ہوئے اندر چلا گیا۔ اب میں پھر اپنے بستر پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ نیند کا نام و نشان نہ تھا۔ پاپا کے کئی بار ٹوکنے پر میں نے تہجد پڑھ ہی لی تھی۔ ہماری نماز بھی کیا تھی، جیسے روٹین کی ایکسرسائز، نہ رکوع میں خضوع، نہ سجدے میں خشوع، نہ تکبیر میں جوش، نہ قرأت میں ہوش۔ تھک کر جب بیزار ہو گیا تو رات کی جانے کون سے پہر آنکھ لگی۔ پھر صبح وہی حسب معمول اٹھنے اور کام پر جانے کے لیے چیخو پکار۔ پہلے 5 منٹ تک الارم ہر 1 منٹ کے بعد اپنی بیزار کن ٹونز کے ساتھ سر پہ بجتا رہتا۔ یہ بیزار کن ٹونز میں نے خود ہی سیٹ کی تھی کہ شاید جھلا کر اٹھ جایا کروں۔ پھر 8:15 بجے سے ماں میرے کمرے کے چکر لگانا شروع کر دیتی۔ عرفان اٹھو، آفس کو دیر ہو جائے گی۔ عرفان، میرا بیٹا اٹھو، میں نے ناشتہ بھی تیار کر لیا ہے۔ بس بیٹا اب اٹھ جاؤ، 8:30 ہو گئے، آدھا گھنٹہ تم نہانے میں لگاؤ گے۔ اب اٹھ بھی چکو، میری ٹانگیں دکھ گئی ہیں تمہارے کمرے کا طواف کرتے کرتے۔ آخر ماں کا لہجہ غصے سے بھر جاتا۔ تب کہیں جا کر میں پوری آنکھیں کھول کر گھڑی دیکھتا، وقت آگے اور ہم پیچھے۔ پھر بھی 5 منٹ مزید بستر میں سستی سے پڑا رہتا۔ دیکھو ذرا، یہ جوان جہان لڑکا، اسے وقت کی ذرا قدر نہیں ہے۔
بہت کوڑ کر ماں بالآخر جب ڈانٹنے لگتی تو میں بستر چھوڑتا۔ مجھے لگتا صدیوں سے میری ماں مجھے یوں ہی جھنجلا کر اٹھایا کرتی ہے، الارم تو یوں ہی میرا سر کھاتا ہے، اور شیطان تو ہمیشہ ہی مجھے وقت سے نظریں چرانے کا سبق دیتا ہے۔ بہرحال جب میرے پاس وقت 20 منٹ یا کبھی کبھی صرف 15-16 منٹ بچتے تو میں بھاگ بھاگ کر آفس جانے کی تیاری کرتا، اور ان 20 میں سے 18 منٹ میرے باتھ روم کے نظر ہو جاتے۔ 2 منٹ میں کیا ماں کے پاس رکتا، کیا ناشتہ کرتا، کیا ان سے دعا لیتا۔ 9 بجے ہر حال میں گھر چھوڑ دیتا، کیونکہ آفس ہر حال میں پہنچنا میری مجبوری تھی۔ اسکول، کالج اور اب آفس۔ میں نے سالوں سے اپنی ماں کو صبح اٹھنے کے معاملے میں اسی طرح ستایا تھا، اور شاید کبھی افسوس بھی نہ کیا تھا۔ ان کا محنت سے تیار کیا ہوا ناشتہ، محبت سے سوچی ہوئی دعائیں اور پیار کی 2 باتیں سب میرے فالتو رجگوں کی بھیٹ چڑھ جاتے۔ وہی اپنی کوشش سے میں روز کی طرح آفس وقت پہ پہنچ گیا، روٹین کی فائل چیک کی، کمپیوٹر آن کیا، اپنے مطلب کی ویب سائٹ وزٹ کی، اور روز ہی کی طرح 10 بجتے ہی سر چکرانے لگا۔ چائے ناشتے کی نعمت سے اب تک محروم جو تھا، آفس کی کینٹین کے کیک اور بسکٹ پر گزارا کیا، پھر چائے پی تو کچھ جان میں جان آئی۔ اس کو دیکھو، روز کی طرح بھوکا پیاسا آفس چلایا ہے۔ کئی بار سمجھایا ہے کہ ماں دھیان نہیں دے سکتی تو شادی کر لے، بیوی تو خیال کرے گی ہی، لیکن یہ بھی اپنی مرضی کا بادشاہ آدمی ہے۔ اگلی میز پر بیٹھے خرم کی تنقید اور افسوس بھی نئی بات نہیں تھی، اور میرا اس طرف توجہ نہ کرتے ہوئے کام میں مگن ہو جانا بھی معمول کا حصہ تھا۔ سارا دن ایسے ہی گزر جاتا۔ صبح ناشتے اور چائے کی دیر طبیعت کی چستی کا خاتمہ کر دیتی، دوپہر کو نیند کی کمی کارکردگی پر برا اثر ڈالتی۔ دوپہر کا کھانا بھی اکثر گھبراہٹ میں نہ کھاتا کہ کہیں کھانا کھا کر باقاعدہ اونگنا نہ شروع کر دوں اور آفس والوں کے سامنے بے عزتی ہو۔ چائے پر چائے پیے چلا جاتا۔ جب شام کو گھر واپسی پر آدھے راستے تک بھوک پیاس پر بڑے صبر سے کنٹرول کرتا۔ موٹر بائک چلاتے راستے میں پڑتے کسی ریسٹورنٹ، گلی کوچوں میں کھلے ہوئے ہوٹل اور ریڑھی والے کے چنے چاٹ اور گول گپوں پر نظر نہ کرتا کہ دل للچا جائے، لیکن اپنے گھر تک پہنچ کر میرا صبر ہوا ہو جاتا۔ حامد لسی والے کی دکان پر بائک خود بخود رک جاتی، برابر میں گرم سموسے اور جلیبی بھوک کو اشتہا دیتے۔ آگے چاٹ، پانی پوری، دہی بڑے جیسے میرے ہی انتظار میں بنا کر رکھے جاتے تھے۔ آخری کونے پر لکھنؤ ریسٹورنٹ کے گرم اور نرم پراٹھے، نان اور ان کی خاص روٹی۔ میں ایک چیز کو سوچتا کہ نہ کھاؤں گا، دوسری چیز پر آ ہی جاتا، اور اسی طرح روز کچھ نہ کچھ پیٹ پوجا کرنے کے بعد نہ کپڑوں کا ہوش ہوتا نہ جوتوں کی پرواہ، بے وقت 3-4 گھنٹوں کی بے سود نیند لیتا، پھر کبھی 10 کبھی 11 بجے ماں کی منتوں اور التجاؤں پر اٹھتا۔ کچھ کھا لے بیٹا، یا تمہارے ابو بلا رہے ہیں، یا نماز پڑھ لو، عشاء میں بہت دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اب آپ کو میرے فضول رجگوں کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ شروع میں آپ نے سوچا ہو شاید میں کسی عشق جیسی مصیبت میں مبتلا ہوں، اسی لیے سخت سردی کی راتوں میں بھی نیند کی لذت سے محروم رہتا ہوں، لیکن آپ نے شاید ابھی مجھے پہچانا نہیں۔ مجھ سے لاپرواہ، آدم بیزار، اکھڑ مزاج آدمی عشق کو کیا جانے اور کیا پہچانے۔ بہت بچپن سے ہی میری روٹین اتنی بیکار اور خراب تھی۔ وقت بے وقت سونے کی عادت نے ایک تو مجھے ہر جگہ خوار کیا تھا، ڈھیٹ اتنا تھا کہ ماں باپ کی کوئی بات نہ سنتا تھا۔ دراصل جب میں پیدا ہوا اس وقت ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے۔ میری ماں ایک بھرے پورے گھر میں بیاہ کر آئی تھی، 6 بھائی اور 4 بہنیں، سب شادی شدہ تھے۔ میرے والد سے چھوٹا صرف ایک بھائی تھا جو اس وقت پڑھ رہا تھا۔ بہوؤں میں میری ماں کا کہیں جا کر 5واں نمبر تھا، اور میرے ماں باپ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل، ہوشیاری اور چالاکی اتنی نہ عطا کی تھی جتنی مروت، تابعداری عطا کر دی تھی۔ 4 جٹھانیوں سے لے کر ساس تک میری ماں پر رعب اور دباؤ اتنا تھا کہ بس سارا دن گھر گھرستی کے چکر میں ہی پستی رہتی، اور ایک اکلوتی اولاد یعنی مجھ پر باوجود بہت چاہنے کے توجہ نہ دے سکتی جتنی دینی چاہیے تھی۔ لیکن یہ طے ہے کہ میری ماں کو مجھ سے محبت بہت تھی، شاید دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر۔ یہ بات میں ہمیشہ سے اچھی طرح جانتا ہوں، مگر جانے مانتا کیوں نہیں۔ میں نے ہمیشہ اپنی ماں کو دنیا کے معاملات نمٹاتے اپنی فکر میں ہی مبتلا دیکھا ہے۔ اسد اب سو جاؤ، اسد اب اٹھ جاؤ، اسد اب کھا لو، اب پڑھائی کر لو، اب کھیل ختم کرو، اب ٹی وی دیکھنا بند کرو۔ نتیجہ یہ تھا کہ ان کے کہنے پر سوتا نہ تھا، ان کے بلانے پر کھاتا نہ تھا۔ میری ماں کے پاس محبت، جذبات، ممتا، ہر چیز کی میرے لیے زیادتی تھی،
लेकिन वक्त की कमी थी, और इस कम वक्त में भी मेरी ज़िद और ढिठाई देखकर वो कुटती और उलझती ज़्यादा थी। इतनी होशियार और ज़ेरक न थी कि इस थोड़े वक्त को समझदारी से संभालती। बहरहाल वक्त जहाँ और जैसे बिताया जाए रुकता तो नहीं। बचपन गुजर गया, नौजवानी, फिर जवानी आई, बहुत कुछ बदल गया। बहुत से और मसाइल बढ़ गए, कई सिमट गए। सब भाइयों के बाद मेरे वालिद की बारी आई तो उन्होंने अपना अलग घर बना लिया। मेरे घर को मेरे वालिदैन ने बहुत शौक़ और मोहब्बत से बनाया। ईंट और पत्थर का घर तो चंद दिनों में बन जाता है, इसे बनाने और संवारे रखना तो मुसलसल मेहनत है। यूँ तो मेरी माँ को फुर्सत अब भी ना मिलती थी, या बेकार और ख़ाली बैठे रहना इसकी फितरत में ही शामिल ना था। इतना हुआ था, अब वो अपने बच्चों पर अपनी मर्ज़ी से वक्त सर्फ करती थी। मेरी 3 बहनें और थीं, बेहद समझदार, फर्माबरदार, बाअदब। कोई पढ़ाई में तेज़ थी, कोई घरदारी में माहिर। सबसे छोटी तो सबसे ज़्यादा नंबर ले गई, हर क्लास में अव्वल आती, घर में हर किसी की पुकार पर हाजिर होती। सूरत इसकी जितनी प्यारी थी, सीरत इससे कई गुना बढ़ के प्यारी थी। इनमें जी हजूरी करने वाली बेटियों के होते मज़े की बात यह थी कि मेरी माँ मेरा हर काम और हर जिम्मेदारी अब भी खुद उठाती थी। मुझे नहीं याद कि उसने कभी किसी से कहा हो कि मुझे उठा दे, मुझे खाना दे दे या मेरे कपड़ों का ख्याल रखे। सच कहूँ तो मेरी सूरत में अल्लाह ताला ने मेरे वालिदैन के लिए एक जीती जागती आजमाइश उतारी थी। ऐसा न था कि मुझ में कोई बुराई थी या मैं खुदा न खास्ता किसी गलत रास्ते पर पड़ गया था। बस मेरी लापरवाही और ज़िद हर किसी को आजिज़ करने के लिए काफ़ी थी। वालिदैन के अपनी औलाद के लिए बड़े ख्वाब होते हैं, और अकलौती नरीना औलाद के लिए तो ख्वाबों का अंबार होता है। दुनिया की हर अच्छाई और हर खूबी इसी एक औलाद वाहिद में देखने की तमन्ना रखने वाले मेरे वालिदैन को मैं पल पल बहुत ज़िद किया करता था। किसी क्लास में मैंने कभी अच्छा रिज़ल्ट लेकर ना दिया, मर मरा के सिर्फ पासिंग मार्क्स लेकर हर क्लास में आगे बढ़ा था। अक्सर शशमाही इम्तहान में तो 1-2 मज़ामीन में फ़ेल हो जाता। फिर अगले 6 माह मेरे माँ मेरे पीछे लगी रहती। दूध, बादाम, नसीहत, फजीहत, बस दिन शुरू और ख़त्म इसी पे हो जाता। तालीमी मराहिल से गुजर कर जब प्रैक्टिकल लाइफ में आया तो भी मैंने अपने वालिदैन को खूब सताया। अपने वालिद के कारोबार में मैंने कभी उनका साथ ना दिया। वो मुझे बुलाते रहे, फरमाइश, इल्तजा, मोहब्बत, हर अंदाज से उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनका कारोबार संभालूं, कि इकलौता बेटा होने के नाते ये मेरा ही तो फ़र्ज़ है। और इसी फ़र्ज़ की रट ने मुझे चिढ़ा के रख दिया था। मेरे वालिद का अपना अंदाज़ था, नरमी, प्यार या फिर बराह करम, बराह मेहरबानी, यानी प्लीज़। वो एक बात को मुसलसल कहते रहते और थकते ना थे। गुस्सा इन्हें सालों में कभी आता, और सख्ती तो उनकी तबीयत का कतई हिस्सा ना थी। और मैं भी अड़ा हुआ था कि जॉब करूँगा, मुझे बिज़नेस से कोई दिलचस्पी नहीं। पापा बिज़नेस भी तो कोई ढंग का हो, शानदार कार, शानदार ऑफिस, नौकर चाकर, बड़े बड़े टेंडर, ऑर्डर्स। आपकी दुकान पर तो खुद ही दुकानदार, खुद ही मज़दूर, खुद ही सेल्समैन और खुद ही कैशियर। मुझे नहीं करना ऐसा काम। अरे बेटा, तू तो जवान जहान आदमी है, मेहनत करेगा, वो दिन दूर नहीं, एयर कंडीशनर ऑफिस होगा और नौकर चाकर भी। तो मेरा साथ दोगे तो हम मिलकर तरक्की कर लेंगे। वही उनका प्यार भरा लहजा। रहने दे पापा, इतने सालों में आपने तरक्की ना की, अब क्या कर लेंगे। और आपका बिज़नेस है भी क्या, 24 घंटे की नौकरी। ना आपने कभी बीवी बच्चों को ढंग से वक्त दिया और ना खुद को। रात गए तक 2 और 2 4 के चक्कर में लगे रहते हैं। मुझे ऐसी टेंशन में नहीं पड़ना, मेरे लिए तो 8-10 घंटे की जॉब ही भली। मैंने उनकी कोई बात ना सुनी। माँ ने नाराज़ होकर यहाँ तक कह दिया कि तुम जैसा लापरवाह आदमी चंद घंटों की जॉब भी टिक कर नहीं कर सकेगा। और इस चैलेंज ने ही मुझे जोश दिलाया था कि हर तरह की सुस्ती, लापरवाही के बावजूद नौकरी में जी जान लगा कर रहा था। मुझे लग रहा है जॉब में इसका दिल लग गया है। ये लड़का मेरी तो कोई बात नहीं सुन रहा। माँ के पास अगर 24 के बजाय दिन में 48 घंटे होते तो भी वो मेरी ही परवाह करती। मैं कहता हूँ इसे इसके हाल पे छोड़ दो। कुछ ना कुछ कर तो रहा है, बेकार तो नहीं बैठा, पापा ने इत्मीनान से कहा। और आपका काम जो इतना फैल रहा है, सालों से आपने इंतज़ार किया है कि बेटा बड़ा होगा तो बाजू बनेगा। मैंने किस किस तरह से असद को समझाया, इसने कभी हमारी कोई बात सुनी ही नहीं है। माँ मेरी तरफ से बहुत मायूस थी। देखो बीबी, भला बुरा और सही गलत अपनी औलाद को बताना, समझाना, समझाते रहना हमारा फ़र्ज़ है। मानना ना मानना इसके इख्तियार में है। और यूँ भी अब असद जवान हो गया है, बालिग और अपनी मर्ज़ी का मालिक है। इसे हर बात इस नीयत से ना समझाओ कि इसे ज़रूर तुम्हारी या मेरी सुनना पड़ेगी।
तुम अपना फ़र्ज़ पूरा करो, बाकी किस्मत पे छोड़ दो। मजाल है जो पापा ज़रा भी रंज में मुब्तला हुए हों। नहीं, बल्कि शायद कमाल ये था कि वो अपने मलाल और परेशानी को कभी ज़ाहिर ना करते थे। आप जैसा दिल मेरा तो नहीं हो सकता। हमारे ख़ानदान में कितनी बातें हो रही हैं। उस दिन बड़े भाई के यहाँ दावत में हर कोई मुझे ही कह रहा था, आपने समझाया नहीं सुमेरा भाभी, इसने भाई मुबीन का इतना काम संभालने के बजाय चंद हज़ार की नौकरी कर ली। और आपकी बड़ी भाभी अतिया ने तो यहाँ तक कह दिया, कहीं ऐसा तो नहीं बाप बेटी की बनती ना हो। फिर आप पर भी तनकीद हो गई। हमारे मुबीन भाई हैं भी तो बड़ी रूखी तबीयत के मालिक। आजकल तो भाई औलाद से भी बना के रखनी पड़ती है। अरे मेरी भोली बीवी, अगर हमने इन लोगों के कहने सुनने में आकर अपनी ज़िंदगी का निज़ाम वज़ा करना शुरू किया तो एक दिन सर में खाक डालते जंगल की तरफ निकल जाएंगे। कितनी बार समझाया है, सबको जी जी कहते हैं और अपने अंदाज से ज़िंदगी गुजारते हैं। मेरे ख़ानदान वालों को तो तुम जानती हो, हर कोई अपनी ही बड़ाई में लगा रहता है। माँ ने जी कहा, लेकिन साफ जाहिर था बात को यूँ ना समझी थी जिस तरह पापा समझा रहे थे। मैं थोड़ी देर पहले टीवी ऑफ करके सहन में आया था और अंदर लाउंज रूम में बैठे अपने वालिदैन की बातें सुन रहा था। टीवी का कोई प्रोग्राम मुझे पसंद ना आ रहा था। 100 चैनल्स में से मुझे कोई ना भाया था। ऐसी बेजारी कनूतियत अब अक्सर मुझ पर तारी होने लगी थी। ना मेरे दोस्त ज़्यादा थे कि फालतू उनके साथ उठना बैठना लगा रहे, ना मुझे मोबाइल या नेट से चिपके रहने में कोई दिलचस्पी थी। मुझे लगता मैं कुछ तलाश करते करते थक गया हूँ, लेकिन इस तलाश और ख़ालीपन पर मेरी तवज्जो ज़्यादा देर ठहरती न थी। मेरी माँ ने अभी शायद चंद दिन हुए हैं कि जुमला बोलना छोड़ा है कि बड़ा होगा तो सुधर जाएगा। वो ये जान गई हैं कि मैं बड़ा हो गया हूँ और शायद ये भी मान गई हैं कि मुझे सुधरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत मगरूर है, साहबजादी के मिजाज ही नहीं मिलते। माना कि माँ बाप की लाडली है, लेकिन ऐसा भी क्या घमंड, हाँ ऐसा भी क्या गरूर। हसीन है तो अपने घर की होगी, ज़रा अल्लाह ने जहानत दे दी है, इतराती कितना है। मैं जानती हूँ मेरे मिलने वाले, मेरे रिश्तेदार, ख़ानदान के लोग, हत्ता के दोस्त भी मेरे बारे में ऐसी ही राय रखते हैं। अदब, एहतराम और लिहाज नाबलद, मीठी बातें, नरम लहजा, प्यार के बोल, ये सब मेरी ज़ात का हिस्सा नहीं थे। मेरे अंदर तो बस गुस्सा था, गरूर था, यह बदलिहाजी थी। बात करने बैठती तो लहजा खुद ब खुद ऊंचा और तेज़ हो जाता। मेरी नादात व खसाइल ने मुझे इस हंसने खेलने प्यार करने की उम्र में तन्हा कर दिया था। यहाँ तक कि मेरे सगे भाई भी मुझसे कम ही बात करते। वालिदैन नसीहत और फजीहत के अलावा मेरे मामलात में बोलते ना थे। माँ बाप की अकलौती बेटी होना, हर क्लास में अव्वल आना, ख़ानदान की हर लड़की से बढ़कर खूबसूरत होना, ये सारी ऐसी खूबियाँ थीं कि किसी भी लड़की को इसके चाहने वालों में मकबूल मुमताज़ कर सकती थी। लेकिन मेरी बददिमागी, अक्खड़ मिजाजी ने मेरी सारी खूबियों पर पानी फेर के रख दिया। अब लोग मेरी खूबियों पर वाह वाह करते, लेकिन मेरे करीब ना आते। ज़हीन और होशियार होने के अलावा मेरा जहन शातिर भी था। कॉलेज में किसी लड़की से नोट्स निकलवाने होते, किसी से रेफरेंस बुक की ज़रूरत होती, घर में भी वालिदैन से कोई फरमाइश पूरी करवानी होती, भाइयों से कोई काम करवाना होता है, कज़न्स के साथ अपने मतलब का कोई प्रोग्राम सेट करना होता, तो मैं चंद अच्छी बातें करके सामने वाले को फुसला लेती। अगला तो चित ही हो जाता, क्या जनीका अहमद हमारी तरह मुतवज्जा है। जो ही मेरा काम निकल जाता, मैं अचानक इतनी रूखी मगरूर हो जाती कि कभी कभी तो सामने वाला दुख और सदमे से भौंचक्का ही रह जाता। मैं जानती हूँ मेरे रवैये की इस अज़ियतनाकी से मेरे वालिदैन तक महफूज ना थे। मेरे वालिदैन ने मुझे बहुत नाज से पाला था। 3 बेटों के बाद घर में पहली बेटी पैदा हुई तो डैडी तो खुशी से फूले ना समाए। गुलाबी रंगत की खूबसूरत नाजुक सी गुड़िया उनके आंगन में आई तो जैसे सारे घर का मौसम बहार हो गया। फूली फूली फ्रॉकें, चूड़ियाँ, मेहंदी, मेरे डैडी ने तो वक्त से पहले घर में हर चीज़ की भरमार कर दी। मम्मा उनकी मोहब्बत को देखकर बेटी पर जी जान से वारी सदके होती। ख़ानदान भर में चर्चे हुए। अकीका इतनी धूमधाम से हुआ कि क्या लोगों की बेटियों की शादियां होती होंगी। ख़ानदान का हर छोटा बड़ा अपनी हैसियत के मुताबिक तोहफ़ा लिए मुबारकबाद देने चला आया था। ये अनायतें, ये मोहब्बतें और प्यार मेरे ऊपर मुसलसल था। मेरी पहली सालगिरह, इसी के बाद की हर सालगिरह डैडी ने हमेशा अपनी हैसियत से बढ़कर मनाई और मैं शऊर में आने तक जैसे हर नवाजिश के आदी होती चली गई।
माँ बाप ने बेटों से बढ़कर मुझे चाहा तो मैं भी जैसे भाइयों का सर ऊंचा करके गर्दन तान कर देखने लगी, यूँ जैसे अपने से छोटा जानती हूँ। बला की जहानत ने मेरा दिमाग और ख़राब करके रख दिया। माँ बाप मुझ पर दिलो जान से फ़िदा होते, शायद ये कभी ना सोचते होंगे कि मैं मिजाज कैसे रूखी मुतकब्बर निकलूँगी। तुम्हारे डैडी चाहते हैं तुम मेडिकल ज्वाइन कर लो। मेरे इंटर में हस्बे तवक्को पोजीशन आई तो मम्मा ने कहा, बट रबिश मामा, आजकल मेडिकल कहाँ पढ़ती हैं लड़कियाँ। मुझे वक्त से पहले बूढ़ा होने का और पढ़ पढ़ कर अपनी आंखें ख़राब करने का कोई शौक़ नहीं है। मैंने यूँ तुनक कर कहा कि मम्मा तो चुप हो गई। डैडी समझदार थे, बोले, लेकिन आज भी बहुत सी लड़कियाँ मेडिकल इसलिए पढ़ती हैं कि अपनी जहानत की धाक बिठाने के लिए मेडिकल से बेहतर कोई फील्ड नहीं। ये बात तो मेरे जहन में बैठ गई। ये भी सोचा, अगर मेडिकल का चांस छोड़ दिया तो ख़ानदान की लड़कियाँ यही कहेंगी कि मुश्किल पढ़ाई देखकर इतनी अच्छी फील्ड छोड़ दी। और सचमुच ये सुनकर अनीका अहमद मेडिकल कॉलेज जाने लगी। बहुत से लोगों पर अच्छा खासा रो पड़ गया। कई लड़के भी जो मुझ जैसी खुदसर लड़की को ख्वाबों में बसाए बैठे थे, उनके अरमानों पर ओस पड़ गई। उफ़, ये तो इतनी लंबी पढ़ाई करेगी, कौन बैठकर इंतज़ार करेगा। मुझे इस वक्त अपने बारे में ऐसी चहमगोइयाँ सुनकर मेरा दिमाग आसमानों पर उड़ने लगता था कि देखो मैं इन सब की पहुँच से कितनी ऊपर हो गई हूँ। मेडिकल कॉलेज में भी जितनी तेज़ी से मेरी जहानत हुस्न के चर्चे हुए, इतनी ही तेज़ी से मेरे सख्त मिजाजी तुंद खोई का भी शोहरा हुआ। एक साथ जितनी तेज़ी से लड़के और लड़कियां मेरी तरफ दोस्ती का हाथ लिए बढ़े थे, इतनी फुर्ती से वो हाथ पीछे भी हो गए, सिवाय चंद एक के जो वाकई मुखलिस थे। लेकिन मुझे इखलास की भी कोई ऐसी कदर न थी। चंद एक दोस्त भी समझो इसीलिए भय के भरम बना रहे, लेकिन मुरव्वत मेरे अंदर नाम को ना थी। आखिर तक वो दोस्त भी बस नाम को रह गए। मगर मुझे परवाह भी कब थी। सीनियर क्लास के जवाद ने उस दिन लाइब्रेरी में किताब ढूंढते हुए मुझे कहा था, आप इतनी ज़हीन कैसे हैं। मैं हस्बे आदत इतराते हुए मुस्कुराई। सही वक्त और सही जगह पर अपने दिमाग को इस्तेमाल करती हूँ, यही मेरी खूबी है। इसने सर हिलाते हुए मुझे देखा। कमाल की बात यह है कि आपको पता है कि आप हसीन भी हैं और ख़ूबसूरत भी। इससे ज़्यादा कमाल की बात यह है कि आप नहीं जानते आप कितने बेवकूफ़ हैं। मेरी शोहरत सुनकर मुझ तक रसाई पाने के लिए मेरे पास चले आए। ढंग से पहले मुझे जानने की कोशिश ना की। जवाद के चेहरे का रंग यकदम बदल गया। आपको जानने के लिए किसी कोशिश की ज़रूरत नहीं है। आपका लहजा बता रहा है कि आप किस क्लास से ताल्लुक़ रखती हैं। वो अपने क्लास का ज़हीन तरीन तालिब इल्म था। इसके अपने पास ना दौलत की कमी थी और ना शोहरत की, और ख़ुद इसका अपना मिजाज बहुत अच्छा था, बिगड़ा हुआ नहीं था। जितना इसका हुस्न अखलाक मशहूर था, इतना ही इसकी लोगों को परखने की सलाहियत भी तेज़ थी। आपने मेरी क्लास पे तंज किया। आप ख़ुद एक नंबर के जाहिल और बदतमीज़ हैं। आपको बात करने का तरीका भी नहीं आता। इंसान यही देख ले कि सामने कौन खड़ा है। मुझे पता था कि इससे ज़्यादा अच्छी बात आप कर ही नहीं सकती। मजबूरी है आपकी, आपके अंदर सलाहियत ही नहीं है। आप जैसे लोग बेचारे बहुत बेबस होते हैं। मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि ज़रूरी नहीं कि ज़हीन आदमी अक्लमंद भी हो। मैं बहुत हंसा। भला ही कैसे हो सकता है? आदमी के पास अकल होगी तभी तो वो ज़हीन होगा ना। लेकिन आपको देखकर इस बात पे पूरा यकीन आ गया। वो मेरी बर्दाश्त का खुला इम्तहान था। मुझे याद है कि मेरी 22 साला ज़िंदगी में किसी की इतनी मजाल नहीं हुई थी कि मुझसे यूँ बढ़ बढ़ के बात करे और मेरी बदतमीज़ी के आगे ठहरा भी रहे। अच्छा बस दफ़ा हो, अपना रास्ता नापें, मुँह उठाए चले आते हैं। बस गालियाँ देने की कसर थी, वरना मैं इसको सब सुना डालती अगर लाइब्रेरी में ना खड़े होते। क्या ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया? शायद आपको कभी किसी ने आईना नहीं दिखाया। देखें, अगर आपने मज़ीद मुझे कुछ दिखाने की कोशिश की तो मैं आपको जूता दिखाऊंगी। फिर सारा काली जमा होगा। मैंने हद कर दी। आपको शौक़ है तो ज़रूर तमाशा करके देख लें। यहाँ कॉलेज में सब आपको भी जानते हैं और मुझे भी। देख लीजिएगा कि जूते कितने निकलते हैं और सर कितने जमा हो जाते हैं। मैं शायद पहली बार यूँ घबराई थी। ढूंढने जाते तो यहाँ मेरे दुश्मन ही ज़्यादा निकलते। लड़के क्या, यहाँ की तो लड़कियों के किसी ग्रुप से भी मेरी बनती ना थी। बीबी अनीका, मैं बहुत दिनों से आपकी खोज में लगा हुआ था। क्या क्या ना लोगों से आपके कसीदे सुने थे। मैं भी सोचता कि देखूं तो सही इस बजते हुए ढोल के अंदर से क्या हकीकत है।
آپ نے تو پہلی بار میں ہی مایوس کر دیا۔ میں اور کچھ نہ سن سکی، نہ اس کے سامنے کھڑی رہ سکی۔ میں نے تو آئینے کے سامنے اپنے آپ کو ہمیشہ خوب سے خوب تر ہی دیکھا تھا، اور کسی کی مجال بھی نہ تھی کہ میرے منہ پر آ کر مجھے تمیز اخلاق کا سبق پڑھائے۔ انتہائی غصے کے ساتھ ساتھ میں پہلی بار بہت دل برداشتہ بھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں بہت دنوں تک لاشعوری طور پر کالج میں اس سے کتراتی رہی، اور میں نے نوٹ کیا کہ وہ بھی کوئی ایسا میرے پیچھے نہیں لگا ہوا تھا۔ دو ایک بار تو سامنا بھی ہوا، میں تو تھی ہی اکتائی ہوئی، وہ بھی اجنبی کی طرح آگے بڑھ گیا۔ میں بھی کچھ دنوں بعد بھول بھال گئی، یوں بھی کسی بات کے اثر میں زیادہ عرصے رہنے والی نہ تھی۔ کالج میں بیت بازی کا مقابلہ ہوا، میں جس ٹیم میں تھی سب جانتے تھے وہی ٹیم جیتے گی۔ کسی نے چیلنج کیا، اس بار تو انیکا احمد کو ہرا کر ہی دم لیں گے۔ کسی نے قسم کھاتی انیکا کو مات نہ دی تو اگلے دن کالج میں شکل نہ دکھاؤں گا۔ میری عادت تھی ایسی سب باتیں سنتے رہنے کی۔ میں جانتی تھی یہ جو کہہ رہا ہے دوسرے دن کالج میں شکل نہ دکھاؤں گا، وہ دوسرے دن واقعی غائب ہو جائے گا۔ تیسرے دن حاضری دے کر ڈھٹائی سے کہے گا، بھائی میں نے دوسرے دن کے لیے قسم کھائی تھی، کوئی ساری زندگی کے لیے قسم تھوڑی کھائی تھی۔ خیر ہارنا تو ان سب کا مقدر ہی تھا۔ میری ٹیم میں 3 لڑکیاں تھیں اور 1 لڑکا۔ اس لڑکے کو بھی ہم نے چن کر گروپ میں شامل کیا تھا کہ وہ میرا شاعر ہی تھا، ہر بات کے جواب میں شعر سناتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ آدھے سے زیادہ ان میں اس کے اپنے شعر ہوتے، اور مقابلے میں کسی کو اپنے شعر سنانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کے پاس بہت ذخیرہ تھا۔ لیکن کیا ہوا، جب مقابلہ شروع ہوا تو وہ یوں چپ رہا جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ میں اور میری کلاس فیلو اسے ٹوکتے رہ گئے کہ عمر بولو، شعر پڑھو عمر، یہ والے سارے شعر تم نے یاد کیے ہیں عمر۔ لیکن وہ بول کے نہ دیا۔ کچھ ہی دیر میں سمجھ گئی ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ میں غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ پہلے راؤنڈ میں ہماری ٹیم بالکل نیچے جا رہی تھی، مگر میں نے عین وقت پر اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دیں، جوش کو ادھار پہ رکھا اور ہوش سے کام لیتے مقابلے پر آئی تو آخر سب کچھ یہی کہتے تھے، انیکا احمد کو ہرانا کوئی بچوں کا کھیل ہے کیا؟ دوسرے سے لے کر تیسرے راؤنڈ میں دونوں ٹیمیں چت ہو گئیں اور ٹرافی میرے ہاتھ میں تھی۔ تم میر جعفر کی اولاد، نرے گدھے، ہم سے غداری کرنے چلے تھے۔ میں تمہارا منہ اسی وقت توڑ دیتی اگر کالج کی عزت کا پاس نہ ہوتا۔ سوری انیکا جی، سوری، وہ چند لڑکوں نے ورگلا دیا تھا، ورنہ آپ جانتی ہیں میں ایسا نہیں ہوں۔ وہ منمنانے لگا۔ کس نے ورگلایا تھا؟ نام بتاؤ ان گیدڑوں کا۔ میں ایک ایک سے نمٹ لوں گی۔ آپ کہاں پھڈے میں پڑیں گی، اچھے لوگ نہیں ہیں۔ تم کیوں بزدلی دکھا رہے ہو؟ اچھا برا میں سمجھ لوں گی، تم صرف مجھے نام بتاؤ۔ کیوں بیچارے کو پریشان کر رہی ہیں؟ غریب سا شاعر ہے، وہ لوگ اس کا جینا حرام کر دیں گے۔ آپ تو بہرحال ہر غنڈے بدماش سے نمٹ لیں گی۔ یہ جب بات تھا، میرا خون کھولنے لگا اسے دیکھ کر۔ برائے مہربانی آپ میرے معاملے میں نہ پڑیں۔ آپ خوش فہمی مبتلا نہ ہو، میں آپ کے نہیں اس لڑکے کے معاملے میں پڑتا ہوں۔ سامنے کچھ غلط ہو رہا ہو تو آنکھ بچا کر گزرنا میرے لیے محال ہے۔ کیا کروں، فطرت ہی ایسی ہے۔ آپ زیادہ دھونس جمائیں گے تو غریب نام اگل دے گا اور مفت میں مارا جائے گا۔ اس نے سمجھانا چاہا لیکن میرے تو آگ ہی لگ گئی۔ واہ، جب ہم سے دھوکہ کیا تو یہ غریب مظلوم نہیں تھا؟ دیکھو میں کہہ رہی ہوں سیدھی طرح نام بتا دو، ورنہ میں ان غنڈے بدماشوں سے بڑھ کر تمہارا برا حشر کروں گی۔ میں نے انگلی اٹھاتے ہوئے بہت سخت لہجے میں اس سے کہا تو بیچارہ واقعی ہکلانے لگا۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، آپ کہتی ہیں تو ارے حد کرتی ہیں آپ، سیدھی بات لگتا ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آتی۔ کہہ رہا ہوں کہ مت پوچھیں، اپنی جان مصیبت میں ڈال کر اس کو بھی عذاب میں ڈالیں گی۔ ارے آپ کو کیا فرق پڑا، آپ تو جیت ہی گئی نا۔ آپ کی واہ واہ ہوئی، بلکہ مقابلہ دیکھنے والے سمجھدار ہی تھے، جان گئے ہوں گے کہ آپ کے ایک ساتھی نے دھوکہ کیا۔ آپ کی ضرورت سے بڑھ کر پیٹھ پیچھے بھی تعریف ہوگی، اور کیا چاہیے؟ بے وجہ ایک بات کے پیچھے پڑ گئی ہیں۔ چلو عمر، نکلو یہاں سے۔ خبردار عمر، تم یہاں سے ہلے تو میں۔ دیکھو ڈاکٹر انیکا احمد، میں اچھوں کے ساتھ اچھا اور بروں کے ساتھ برا ہوں۔ اگر اب تم نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی، میں خود تمہارے ان غنڈے بدماشوں سے بڑھ کر حشر کروں گا، سمجھی؟ اس نے اسی طرح انگلی اٹھا کر میرے چہرے کے بہت قریب کی اور میری عمر کو دی ہوئی دھمکی مجھ سے زیادہ سخت لہجے میں مجھے لوٹائی۔ میرا بس نہ چل رہا تھا، چیخ چیخ کر دنیا اکٹھی کر لوں۔ وہ مجھے اتنا کچھ سنا کر گیا، میں کچھ نہ کر سکی۔
اس واقعے کا مجھ پر اتنا اثر ہوا کہ 2 ہفتوں تک میں نے کالج گھر میں کسی سے ڈھنگ سے بات بھی نہیں کی۔ بڑے ماموں کے اکلوتے بیٹے کی شادی تھی۔ مما منتیں کر کر کے ہار گئیں، مگر میں مہندی، مائیوں، میلاد کسی دعوت میں نہ گئی۔ ماما باقاعدہ مجھ سے ناراض ہو گئیں۔ زندگی میں پہلی بار انہوں نے مجھ سے ترش لہجے میں کہا، سچ کہتے ہیں اولاد کا لاڈ بھی اتنا کرنا چاہیے جتنا اس کا ظرف ہو۔ میں خود سمجھ رہی تھی کہ یہ باتیں اچھی نہیں، لیکن ان دنوں میرا ذہن بالکل معاف تھا۔ میں نے 3 بار موبائل پر فون کیا۔ میرا ڈرائیور میرے سخت مزاجی سے واقف تھا، اسی لیے ہمیشہ میرے بتائے ہوئے وقت سے پہلے ہی مجھے لینے کالج پہنچ جاتا۔ اس دن اس نے بتایا کہ ٹائر پنکچر ہو گیا۔ مجھ سے صبر کیوں کر ہو، فون کر کر کے اس کا دماغ چاٹ لیا۔ جی بی بی ابھی آیا بی بی، اب بس ہو گیا بی بی، کہتے کہتے اس کی زبان سوکھ گئی۔ مجھے چین نہ آیا۔ الو کے پٹھے، ٹائر دیکھ کر نہیں چلتے ہو؟ دیکھ لینا، ڈیڈی سے کہہ کر تمہاری نوکری سے چھٹی کروا دوں گی۔ میرا ڈرائیور میرے باپ سے بھی بڑی عمر کا تھا، لیکن میں نے کالج کے گیٹ کے باہر کھڑے اس کی بری طرح بے عزتی کی۔ آج کل میرا دماغ ویسے ہی بہت بپھرا ہوا تھا، قسمت بھی زیادہ مہربان نہ تھی۔ وہ بیچارہ تو سر جھکا کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اگلے لمحے گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ او گاڈ، اب کیا ہوا؟ وہ چیخ پڑی۔ کیا کروں بی بی، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہوا۔ یہ تو شیطانی چرخے ہیں، کب جواب دے جائیں پتہ نہیں چلتا۔ دبے دبے لہجے میں بولا، ارے سب سے بڑے شیطان تو تم ہو، مجھے خوار کر کے رکھ دیا ہے۔ گیٹ کے باہر کھڑے سارے اسٹوڈنٹس تماشا دیکھ رہے تھے۔ میرا لہجہ اور آواز ہی بہت تیز تھی۔ پتہ نہیں یہ مصیبت بھی اسی وقت کیوں آئی تھی۔ خدا گواہ ہے کہ اس وقت میں اپنے غصے پر قابو پانا چاہ رہی تھی۔ آپ کیوں اپنے آپ کو تماشا بنوا کر خوش ہوتی ہیں؟ اسی وقت جواد کی آمد جلتی پر تیل کے مستاق تھی۔ میں اپنے غصے سے ڈر کر چپ رہی، کوئی جواب نہ دیا۔ یوں چپ رہنا میرا مزاج نہیں تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ جواد نے مجھے اپنے رویوں کی بدصورتی کا احساس دلایا تھا۔ میں مانتی نہ تھی، لیکن وہ ماننے سے حقیقت بدلتی تو نہیں۔ میں نے چاہا کہ وہ وہاں سے چلا جائے۔ آپ کو کسی نے یہ بات نہیں سمجھائی، جب ہم دوسروں کی بے عزتی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری عزت کا جنازہ نکلتا ہے؟ وہ اتنی آہستہ آواز میں بات کر رہا تھا کہ ذرا دور کھڑا ڈرائیور بھی نہ سن پائے۔ خدا کے لیے آپ میرے دادا بن کر مجھے نصیحتیں نہ کریں، میں نے دانت پیس کر کہا۔ جی ہاں، آپ کے دادا کو تو توفیق نہ ہوئی کہ آپ کو کوئی اچھی بات سکھا دیں، تو میں کس کھیت کی مولی ہوں؟ اس شخص کو میرے لیے شاید آزمائش بنایا گیا تھا۔ میں اب بھی چپ رہی، پھر منہ پھیر کر ڈرائیور سے بولی، تم جلدی کر رہے ہو یا میں رکشہ لے کر گھر چلی جاؤں؟ نہیں بی بی، صاحب بری طرح خفا ہوں گے، بس تھوڑی دیر۔ میں نے اسے بات پوری نہ کرنے دی۔ اچھا ہے، تمہاری تو خوب ٹھکائی ہونا چاہیے۔ ارے انیکا بی بی، اتنی بد زبانی ایک لڑکی کو ہرگز سوٹ نہیں کرتی۔ آپ نرم لہجے میں بات تو کر کے دیکھیں۔ اوہ، تو آخر آپ نے کتنے پیسے لیے ہیں مجھے سدھارنے کے؟ اب میری آواز اور غصہ اس کے سامنے قابو میں رہنے والا نہیں تھا۔ اوف، اگر آپ سدھر جائیں تو آپ جتنے کہیں اتنے پیسے میں خود آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ یوں بولا کہ میں بپھر گئی۔ اب تک کسی کی دیکھا دیکھی میں سختی سے لیکن نیچی آواز میں بات کر رہی تھی۔ آپ دفع ہو جائیں یہاں سے، مجھے معلوم نہ تھا آپ اس قدر ڈھیٹ نکلیں گے۔ میں نے ابھی تک جتنی نیچی آواز رکھی تھی اب اتنی ہی اونچی کر لی۔ وہ سچ مچ حیران رہ گیا۔ ارد گرد گزرتے طالب علم پلٹ پلٹ کر دیکھنے لگے۔ یہ تو حقیقت ہے کہ بعض لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے مہر لگا دیتے ہیں، ہدایت کے راستے کو وہ پا ہی نہیں سکتے۔ اس نے اب بھی اپنی آواز اونچی نہیں کی تھی، لیکن اس کے بعد سن کر میرا دل نیچے کی طرف ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ میں نہیں جانتی مجھ پر کیا گزری، لیکن وہ کیفیت بالکل انوکھی تھی۔ اس سے پہلے جواد کی جتنی باتوں کا مجھ پر اگر کوئی اثر ہوا بھی تھا تو نتیجہ ہر بار غصے کی صورت میں ہی نکلا تھا، لیکن آج میں چپ رہ گئی۔ یہ خاموشی میرے پورے وجود پر طاری ہو گئی، اور اس دن سے جو سناٹا میرے اندر اترا وہ میری ذات کو جکڑ چکا تھا۔ اور ایک دن اچانک میں نے ایسی خبر سنی جو اس سناٹے میں درار ڈال گئی۔ کوئی چیز میرے اندر اتنی بری طرح ٹوٹی کہ شور سارے وجود میں بہت دنوں تک گونجتا چلا گیا۔ ہمیں نہیں سنا تھا، شاید میری کلاس فیلو صنم ہی بتا رہی تھی کہ ہفتے کی رات کو جواد کی منگنی ہے مہران ہوٹل میں۔ اس نے اپنی کلاس کے چند دوستوں کو دعوت دی تھی۔ میں ہنسی، بھلا مجھے کیوں دعوت دی جائے؟ میں نہ اس کی دوست تھی نہ کلاس فیلو۔ مجھے اس دن خبر ہوئی کہ لوگ بے وجہ کیوں روتے ہیں۔ ہاں، میں
यानी अनीका अहमद, जो दूसरों को आजिज़ करते, उन्हें रुलाते, आज खुद फूट फूट कर रो रही थी। खुलकर रोई भी और बस उसी दिन रोई थी। इसके बाद चुप की वही बुक्कल मेरे वजूद का हिसार किए रही। मेरा मिजाज, अंदाज, लहजा सब बदल गया। मिलने जुलने वाले साथी, दोस्त, अहबाब हैरान हुए, लेकिन वजह पूछने कोई ना आया। शायद किसी में जुर्रत ना थी। मुबादा अनीका अहमद इसी पल पूछने वाले की बेइज्जती करते। जो मुझे जानते थे उन्होंने मेरे करीब आना छोड़ ही दिया था, सो मैं अब भी अकेली ही थी। असद मुबीन उस दिन अपने ऑफिस के किसी एजाज़ी डिनर में मदऊ था। हाल में सब बैठे गप्पे लगा रहे थे जब वो यूं ही टहलते हुए होटल के लाउंज में आ गया। होटल के दूसरे हाल में किसी शादी की तकरीब थी जहां अनीका अहमद मदऊ थी। वो भी हाल के अंदर की गहमा गहमे से उकता कर बाहर लाउंज में आई थी। जब वो लाउंज में आई, इसी वक्त असद की तवज्जो उसकी तरफ मबजूल हुई थी। सोफ़े पर खाली बैठी कितनी देर में बेमकसद आते जाते लोगों को देखे जा रही थी। इसे अजीब सी कशिश महसूस हुई थी। इसके अंदर इतनी जुर्रत ना थी कि आगे बढ़कर इस लड़की से कोई बात करे। वो किसी गैर अजनबी से भला कम मुतासिर हुआ था और वो बात करे, वो भी सिनफ़े मुखालिफ। यूँ किसी से मिलने मिलाने में इसका तजर्बा सिफर था। कई बार इसने सोचा वो उठे, इससे पूछे, आप अंदर हाल की गहमा गहमी और रंगीनी छोड़कर यूँ बाहर अकेली बैठी हैं? अनीका, अंदर चलो भाई, रस्म हो रही है। तुम कहाँ गायब हो गई? किसी ने इसे बुलाया तो बेदिली से अंदर की तरफ बढ़ गई। अनीका, वो इस नाम को सोचता रहा, कैसे मुमकिन है कि वो इसे दोबारा मिले। इसकी रूखी फीकी ज़िंदगी में किसी सिनफ़े नाजुक का तो गुज़र भी नहीं था। ऑफिस में बहुत सी लड़कियां काम करती थीं। इसके अपने ख़ानदान में कई लड़कियां इसकी हम उम्र थीं। वो तवज्जो भी ना करता था और अपनी शख्सियत को भी इसने कोई इस तरह बनाकर नहीं रखा था कि कोई इसकी तरह मुतवज्जा हो। लेकिन आप इस बात पर यकीन रखते हैं कि तकदीर हर चीज़ पर कादिर है। कुछ अच्छे लम्हे और सुनहरी चांस ज़िंदगी में कहीं और कभी ज़रूर आते हैं। किसी की कही हुई बात इसके जहन में गूंज रही थी। अगले दिन वो अपने घर से बाहर निकला। पहली बार इसने ढंग से आईना देखकर अपनी तरफ तवज्जो की। घर से बाहर सारा दिन दिल किसी दुआ में लगा हुआ था। शाम को जब वो अपने बिस्तर में लेटा तो हंस पड़ा। कोई यूं किसी को मिलता है? लेकिन जुमा की शाम क्लिनिक के वेटिंग रूम में वो 2 मिनट ही बैठा होगा कि कोई लड़की तेज़ी से आई और अंदर डॉक्टर के कमरे में चली गई। वो अनीका ही थी। इतनी बड़ी दुनिया में एक अनजान लड़की सिर्फ आपकी दुआ से आपसे दोबारा टकरा जाए, खुदा के होने का पक्का यकीन हो जाता। इसने डॉक्टर साहब से पूछने की जुर्रत कर ली, ये जो अभी अभी लड़की गई है ये कौन थी? और बरखुरदार, तुम समझते हो तुम किसी लड़की के चक्कर में पड़ सकते हो? मैं 70 साल का बूढ़ा तो नहीं। वो हंसा। वो पार्क में टहलने के बजाय एक बेंच पर बैठी थी। मैं दूर से इसे देखकर तेज़ तेज़ चलता इसके करीब पहुंच गया, यूँ जैसे इसी से मिलने आया हूँ। आया तो मैं इसी से मिलने था, लेकिन डायरेक्ट कह देता, फिर वही जूते, गालियों का खौफ। मैं कुछ फासले पर रुक गया। डॉक्टर अनीका अहमद, क्या मैं आपसे चंद बातें कर सकता हूँ? मुझे कतई उम्मीद ना थी जवाब मस्बत मिलेगा। लेकिन इसने इस बात में सर हिलाया तो मैं बहुत खुश हुआ। जाहिर कुछ ना किया और इसे बेंच के कोने पर टिक गया। जी फरमाइए, मैंने तो शायद आपको कभी नहीं देखा। मैं इसके अंदाज़ पर थोड़ा मायूस हुआ, फिर सोचा क्या बगैर जाने पहचाने मेरे साथ कह लगाना शुरू कर देगी। डॉक्टर अनीका, बात दरअसल ये है कि मैं चुप हो गया। आप तो यूँ हकला रहे हैं मिस्टर, जैसे रिश्ता मांगने आए हूँ। वो हंसी तो इतनी अच्छी लगी कि मैं हर बात भूल गया। ओके, मैं आपसे कल फिर मिलूँगा। आप यहाँ रोज़ आती हैं ना? मैं एकदम उठ गया। मेरे अंदर एतमाद की भरपूर कमी थी। मैं कई दिनों से अपना रूटीन बनाने की कोशिश कर रहा था। सोने, जागने, खाने पीने के असूल जो मुझे बताए गए, इन पर अमल की कोशिश कर रहा था। माँ हैरान थी। सुबह नाश्ते के लिए वो पूरे 20 मिनट पहले मेज़ पर आया था। माँ, चाय मैं बना लेता हूँ, आप मुझे पराठा देते हैं। माँ की खुशी से भरपूर हंसी को इसने महसूस किया तो इसे खबर हुई कि ज़िंदगी में बहुत लज्जतें हैं। नहीं, तुम क्यों बनाओगे? ठहरो, तुम्हारी बहन को बुलाती हूँ, तुम आराम से मेज़ पर बैठो। नहीं माँ, किसी को ना बुलाएं, मैं नाश्ते और आपके प्यार को अकेला समेटूँगा। मैं नहीं भूल सकता इस प्यार और पराठे की लज्जत जिसे सालों से ठुकराता आया हूँ, सिर्फ अपनी कम अकली, कम नसीबी की बिना पर। आमलेट बना दूँ?
दूध में ओवल्टीन मिला दूँ? बेटा सिर्फ मक्खन खा रहे हो, ये जैम भी लो ना। माँ ने मेरी यूँ खातिर की जैसे नन्हे बच्चे को माँ खिलाए पिलाए। पूछे सालों के इसके अरमान दबे पड़े थे, दिनों में कैसे हिसाब पूरा हो सकता था। इस सुबह घर से निकलते हुए मैंने अहद किया अब सालों तक वो गुनाह जो माँ को नाराज़ करके मैंने किए थे उनका अजाला करता रहूँगा। ऑफिस से उठकर शाम को पार्क में जाने और अनीका अहमद से बात करने का मेरा इरादा था। हिम्मत में गड़बड़ा कर घर लौट आया। दूसरे दिन शाम को किसी न किसी तरह हिम्मत करता मैं पार्क पहुंच गया, लेकिन वो ना मिली तो मैं इतना मायूस हुआ कि घर जाने के बजाय घंटा भर तक बेकार सड़कों की खाक छानी। वही रोज़ की तरह ठेले और रेस्टोरेंट वालों के उल्टे सीधे खाने खाए और घर जाकर औंधे मुँह बिस्तर में पड़कर बेवक्त सो गया। 2-2.5 घंटे गुजर गए तो मेरी आँख खोली। घड़ी और अपना हुलिया देखकर मैंने जहन पर जोर दिया, हाँ, इस पार्क ने सारे रूटीन का सत्यानाश कर दिया। क्या बात है असद बेटा, आज बेवक्त सो गए? रोज़ तो तुम नहा धोकर नमाज से फारिग होकर इस वक्त तक हमारे साथ खाना खा लेते हो। खुदा की कसम, अभी चंद ही दिन हुए थे, शायद 8 दिन भी पूरे ना हुए होंगे कि मैंने अपनी माँ को रोज़मर्रा के मामूलात के मामले में सताना छोड़ा हो, लेकिन वो उम्र भर की कोफ्त और अजियत भुलाए सिर्फ आज की बात कर रही थी। कहीं तबीयत वगैरह तो ख़राब नहीं हो गई? माँ जैसी अनमोल हस्ती आपको दुनिया में नहीं मिलेगी। ये मुझे याद आया तो एहसास हुआ कि इस हस्ती की नाकदरी करने वाला कितना बदनसीब होता है। मैं सर झुकाए अपनी माँ के करीब आ गया। सॉरी माँ, मैंने आपको परेशान किया। तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, आज मायूस बहुत हो गया था इसलिए थक गया। कोई बात नहीं बेटा, आप नमाज़ पढ़ो, मायूसी दूर हो जाएगी। वाह, कैसे टोटके और आसानियाँ माँ सिखाती है। मैंने तो कभी समझने की कोशिश ही ना की और मायूसी का भी हल हो सकता है। नमाज़ पढ़कर वाकई लगा कि दिल की बेचैनी और घबराहट कम हो गई है। खाना खाओगे बेटा? माँ फिर हाजिर थी। शर्म करो असद मुबीन, सारी हाजिरियाँ माँ से लगवाते हो। तुम खुद दिन में कितनी बार इसे पूछते हो? मैं शर्मिंदा हुआ। आज फिर इतनी फजूल चीज़ें खा ली हैं, पेट का हशर हो गया। आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैंने कान पकड़े तो माँ हंस पड़ी। आज रात को फिर नींद ही नहीं आ रही थी। मैं कमरा खोलकर सहन में टहलने के लिए निकला। मजबूरी थी, मगर कमरे में बेकार पड़े हुए घबराहट शदीद हो गई थी। तहज्जुद पढ़ लो असद। हस्बे आदत मुझ पर नज़र पड़ते ही पापा ने कहा। जी पापा, पढ़ रहा हूँ, मैंने बहुत नरमी से कहा और फिर टहलने लगा। कैसा शख्स था मेरा बाप, सारी ज़िंदगी घर वालों के लिए मेहनत करते कभी उकताया ना था। जवान बेटे ने हरी झंडी दिखा दी, मगर मजाल है कि ये सोच कर काम कम किया हो कि अब औलाद अपना बोझ खुद उठाएगी। वो कब तक मेहनत करे? पापा, कल ही ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी लेकर आपके पास दुकान पर आऊँगा। शायद आपका कोई काम या कोई मुश्किल मेरी समझ में आए और मैं आपका साथ दे सकूँ। कुछ देर टहलकर मैंने पापा से कहा, हाँ ज़रूर बेटा, कुछ दुकान के बारे में तुम्हें भी मालूम होना चाहिए। जाने मेरी ज़िंदगी कितनी है, फिर ऐसा ना हो कि तुम्हें कोई समझ और पहचान ही ना हो। ऐसा ना कहीं पापा, आप तो कभी मायूस नहीं होते ना। ज़िंदगी के ख़त्म होने की बातें मायूसी हैं, ये तो अगली उम्मीद के सफ़र की तैयारी के मराहिल हैं। दुनिया इसी सफ़र की तैयारी का नाम तो है। ठीक है, लेकिन अभी आपकी दुनिया में करने के काम पूरे नहीं हुए। अभी मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। मैंने देखा मेरे बाप की आंखों में चमक उभरी थी, शायद साथ पानी भी था। वो साबिर और शाकिर रहने वाला शख्स खुश हो गया था। मैं दोबारा पार्क ना गया, लेकिन अगले हफ्ते क्लिनिक में अनीका को देखा। अपनी बेकरारी याद आई। उस दिन अनीका खुद इसके पास आई थी। आप ना दोबारा पार्क आए, ना अपना नाम बताया। इसने देखा कि उसका लहजा सरसरी था। आऊँगा, आपने तो जाना नहीं छोड़ा ना? अभी तो नहीं छोड़ा, लेकिन जाने कब छोड़ दूँ? वो अंदर डॉक्टर के पास बारी आने पर चली गई। आप तो खुद डॉक्टर बन रही हैं, फिर डॉक्टर के पास धक्के क्यों खा रही हैं? इसने बच्चों जैसा सवाल किया। शाम को पार्क में इसने इससे पूछा था, डॉक्टर बीमार नहीं होते क्या? और मैं कौन सा भी डॉक्टर बन गई हूँ? ये पढ़ाई भी इतनी लंबी है कि ख़त्म होने में ही नहीं आ रही। आप उकता गई हैं क्या? नहीं, थक गई हूँ। बाज़ दफ़ा वक्त का कुछ हिस्सा ठहर सा जाता है। लगता है ज़िंदगी में जमूद आ गया। वो इससे बातें करने लगी थी। वक्त कहाँ ठहरता है, ये आपका वहम है। वो हंसा। आपको क्या पता, आपने मेरी तरह ज़िंदगी गुजारी हो तो आपको पता लगे। फजूल बहस कर रहे हैं।
अचानक इसका लहजा तोश और आवाज़ तेज़ हो गई। हाँ, ये भी सच है, मैंने आपकी तरह तो ज़िंदगी नहीं गुजारी। शायद आपकी घड़ी में वक्त रुक जाता है, लेकिन इसके दो मतलब हैं, या तो घड़ी ख़राब है या दिमाग। इसने दानिस्ता ऐसी टेढ़ी बात कही। मेरे घर की कोई चीज़ ख़राब नहीं होती, समझे आप? ना घड़ी, ना घड़ी की सुइयाँ। फिर ज़रूर दिमाग ही ख़राब है। वो फिर बोला, किसका? आपका? जब भी आप यहाँ एक अनजान लड़की के साथ टहलते हुए अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। आइंदा इधर का रुख ना कीजिएगा, बेकार दूसरों को परेशान करते हैं। अचानक ही इसका मिजाज बिगड़ गया। असद को लगा, उसे बहुत अजीब सा लगा और बुरा भी। वो तो अपने तय मजाक से के मूड में था। अपने वक्त पर घर पहुंचकर इसने नहाया धोया, आईने के सामने खड़ा हो गया। आजकल वो अपने बाल स्टाइल से संवारने, कपड़ों का इंतखाब करने और एक्सरसाइज तक पर तवज्जो देता था। किसी बात पर जल्दी मायूस ना होता था और हर बात का अच्छा बुरा पहलू सोचा करता था। वो पार्क दोबारा वाकई न गया, लेकिन अपने वालिदैन को लेकर अनीका के घर चला गया। क्या तुम्हारी ज़िंदगी की तमाम तब्दीलियों की वजह ये लड़की है? इसने माँ बाप से जब जिक्र किया तो पापा ने सीधा ये सवाल इससे पूछा। इसने नफ़ी में सर हिलाते हुए असल वजह कोई और बताई। मुझे लगता है अनीका अहमद इस तब्दीली में पुख्तगी की वजह बन जाएगी पापा। अभी तुम इसे जानते ही कितना हो सकता है कि इसके वालिदैन इनकार कर दें, वो ख़ुद राज़ी ना हो। फिर मायूसी में इंसान को ख़ुद को संभालना मुश्किल हो जाता है। आप ठीक कहते हैं, मैं अभी इसे जानता ही कितना हूँ। थोड़ा बहुत इसके बारे में सुनकर मैंने समझा कि अगर हम एक दूसरे को समझ लें तो शायद दोनों की भलाई होगी। और सच बात तो यह है कि मुझे कहीं मिली और बस एक नज़र में अच्छी लगी थी। अगर ना मिली तो मैं कोई और अच्छी रफ़ीक़े हयात ढूंढने की कोशिश करूँगा। और ये भी हो सकता है कि शादी के बाद तुम जैसा समझते हो वैसा नतीजा ना निकले। ये लड़की अपने आप को बदलने के बजाय तुम्हारे बदल जाने पर ज़ोर थे। पापा इसे हर तरह जांच रहे थे। वो ज़िंदगी को जिस तौर से गुजार चुका है, वो इसे दोबारा गुजारनी पड़े तो शायद इसके अपने लिए और इसके साथ रहने वालों के लिए ज़्यादा तकलीफ दे हो जाए। नहीं पापा, अब अगर मैं बदला भी तो पीछे की तरफ नहीं जाऊँगा। इंशाल्लाह आगे भलाई की तरफ जाऊँगा, ये मेरा ख़ुद से अहद है। ठीक है, फिर अपने रिस्क पर ये बाजी लड़ो। पापा ने कहा तो क्या मतलब? आपकी दुआएं मेरे साथ नहीं हैं क्या? वो बौखला गया। हमारी तो दुआएं, आरज़ुएं, खुशियाँ सब तुम्हारे ही साथ हैं। वो खुश हो गया। माँ भी बहुत खुश थी। इसकी बहनें भी चहक रही थी। घर का माहौल बहुत अच्छा हल्का फुल्का हो चुका था। माँ ने दुआ की कि ये खुशियाँ और मोहब्बत यूँ ही कायम रहें। अनीका के वालिदैन बहुत दिनों बाद रिश्ते के लिए राज़ी हुए। सच बात यह है कि मेरी इकलौती बेटी बहुत नाज़ों में पली है। इस वजह से इसका मिजाज भी शाहाना है। और फिर मुबीन साहब, मैं समझता हूँ कि इन मामलात में बच्चों की राय भी ज़रूर ले लेनी चाहिए। हम कपड़े, जूते उन्हें उनकी पसंद के पहनाएं, खाना इन्हें जो भाई वो खिलाएं, और ज़िंदगी भर का मामला हो तो उनकी पसंद और अकल को कोई अहमियत ना दें। मैं इसे जायज़ नहीं समझता। ज़्यादा दिन जवाब देने में इसीलिए लगे कि मैंने अपनी बेटी से साफ कहा, अच्छी तरह गौर कर लो। चाहो तो असद से मिलकर कुछ मामला डिस्कस करने हो तो वो भी कर लो। इसने बहुत दिन सोचा। मैंने कहा, बेटी बहुत हो गया, तुमने इतने दिन लगा दिए हैं। तो इसने जवाब दिया कि डैडी, आपने कहा कि मैं असद से एक आध बार मिलकर ज़िंदगी भर के मामला तय कर लूँ, लेकिन मेरा ख़्याल है कि अगली ज़िंदगी के मामला तो मुझे ख़ुद पहले अपने आप से तय करने चाहिए। बस इसीलिए दिन ज़्यादा लग गए। आपकी हर बात जायज़ है, और अनीका बेटी का ख्याल भी बहुत भला कि इंसान ख़ुद से तय करे कि वो दूसरे के लिए क्या कर सकता है, कि अगले से वादे लेता फिरे कि आप मेरे लिए क्या करेंगे। मुबीन साहब ने ताइदी अंदाज में सर हिलाया था। असद भाई, अब उठ जाओ, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। अनीका जब से उठी थी इसे आवाज़ें दे रही थी। जब नाश्ता बनाने निकली तब इसे उठाया। अपने और इसके कपड़े वार्डरोब से निकालते वो इसे मुसलसल जगाती रही। असद, क्या है भाई, वक्त पर आदमी उठ भी ना सके। फिर बोलती अपना बैग भरने लगी। फिर असद की हर चीज़ तैयार करके रखती। जी चाहता है पानी का पूरा जग तुम्हारे ऊपर उंडेल दूँ। वो भी अब उठ चुका था। बिस्तर छोड़ने में वही सुस्ती। अब मैं नहाने जा रही हूँ, आपको ठंडा नाश्ता करना पड़ेगा। मेरे क्लिनिक की आपको परवाह नहीं, आपको ऑफिस से देर हो रही है। अनीका ने अपने कपड़े उठाए और बाथरूम में गायब हो गई। असद बाहर आया तो नाश्ता तैयार था, लेकिन वो अपनी माँ की तरफ आ गया।
माँ प्लीज़ गर्म पराठा। मुझे पता था कि तू आएगा, लेकिन तू रोज़ ऐसा करेगा तो अनीका नाराज़ हो जाएगी। नहीं होगी नाराज़, माँ बेटे के बीच में इसकी क्या दखल अंदाज़ी। जितने साल मैंने आपके पराठे छोड़े हैं ना, इतने साल खा लूँ, फिर अनीका के दिया नाश्ता भी कर लूँगा। आपके पराठे खाने के लिए तो रोज़ उठने में अनीका को तंग करता हूँ, तो अब तो यूँ अनीका को कब तक सताएगा? जब तक आप कहें। चल बदतमीज़, मैं तो कहती हूँ आज से इसे सताना छोड़ दे, मैं तुम दोनों को पराठे बनाकर खिलाऊंगी। माँ तो इतनी खुश थी कि बस मेरे लिए जैसे जन्नत की नर्म हवा का झोंका थी। इसकी हंसी खुशी से दी दुआ से मेरे सारे काम संवर जाते थे। नहीं, अभी से आप पराठे खिलाने लगी तो मैं चेक कैसे करूँगा कि अनीका हमारे लाड और मोहब्बत से बिगड़ रही है या संवर रही है। ये मिशन मैंने असद मुबीन को दिया था। अनीका अहमद जैसी ज़हीन, खूबसूरत, बाइतमाद लड़की को सुधारने का। मुझे डॉक्टर बिलाल ख़ान कहते हैं। ये दोनों बच्चे अनीका अहमद और असद मुबीन मेरे पास 2 हफ्ते के वक्फे से इलाज के लिए आए थे। मैं माहिर नफ्सियात होने के नाते उनके मसले समझता और सुलझाता रहा, और इंसान होने के नाते दोनों को एक रास्ता समझाता रहा जिस पर चलकर मुझे लगता था कि दोनों ज़िंदगी का मकसद और एक दूसरे के लिए भलाई पा लेंगे। सच ये है कि अनीका से असद को पहली बार किस्मत ने मिलाया, फिर मैंने सिर्फ राह हमवार की। हर इंसान की तरबियत और फितरत के बाहम कहीं बाल बराबर कसर रह जाती है तो राब्ता दूर तक रिश्तों से टूटा रहता है। इसे जोड़ने के बहुत से वसीले हैं, इलाज, दुआ, मोहब्बत और इबादत। हम अपनी से कोशिश करते हैं, लेकिन ये कोशिश मुसलसल है जो आगे तक जारी रहनी चाहिए। अपनी औलाद को लाड प्यार में तवाज़ुन के साथ परवरिश करें। इस तवाज़ुन में बहुत सा बिगाड़ आजकल के ज़माने की आम सी बुराइयां भी पैदा कर रही हैं, लेकिन मुकाबला हमा वक्त जारी रहना चाहिए। इस नावल का तो इख्तिताम हुआ। इजाज़त चाहती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।